And before we move, I would like to take your attendance. Okay, so Komal is here. Komal Jangir, Yes, sir. Ankit, Amrita, Urmit, Nikita, Present, sir. Diksha, Swadhi, Present, sir. Muskan, Rishabh, Disha, Julu, Sairaj, Sonia, Tanmay, Pratham, Anjali, Present, sir. Asfaq, Present, sir. Siddharth, Omika, Aviral, Rinku, Garv, Neha, Present, sir. Nisha, Present, sir. Kushi. Present, sir. Aman. ओके फाइन। सो ये जो आपकी अटेंडेंस है, ये आप जो मेरी साइट है, उस साइट स्कूल साइट पर अपलोड हो जाएगी, सो दैट आप जब भी देखना चाहें कि आप या कोई पेरेंट आपका देखना चाहे कि इसने क्लास अटेंड की या नहीं की, या फिर प्रिंसिपल जानना चाहें, तो यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल होगी। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट यूजर डिफाइंड फंक्शंस, एंड उसमें से बहुत कुछ मैंने करा दिया था, और उसके आगे जो है अब हमें चलना है। So I think we were here, and before moving ahead, I'm opening Colab. So this is new notebook. So today we'll study mutable, immutable arguments. Okay, so हम यहाँ पर mutable, immutable arguments के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. So यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो जब भी मुझे प्रोग्राम की ज़रूरत होगी, तो I'll come to that place and create the program. So here, see, this is the function, user-defined function. The name of this function is calc. And you observe that we have passed two parameters here, a and b, but we don't know the types of these identifiers or the parameters. But what I'm doing here,
I'm just twicing the value of A and increasing the value of B by 1. So what happens in this case, just observe that immutable की बात चल रही है. So parameter is immutable right now, as if we apply this formula, A is equal to A into 2, means whatever value you pass to this parameter from here, I have passed the value of P as 100 and value of Q as 200, and A will be 100 and B will become 200. So when you say A is equal to A into 2, so what is A? A is 100. So 100 multiplied by 2 will become 200. So A's new value is 200 and B's new value is 200 plus 1 is 201. When you say print calc, जो कुछ भी कैलकुलेशन में हुआ है और जो वैल्यूज हैं यहाँ पर A एंड B अपडेट हुई हैं, उनकी जो आउटपुट है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगी. व्हेन यू पास्ट calc p comma q and after the when you print p and sorry, ये पहले हम यहाँ देख लेते हैं. print calc a comma b, so a is your 200 and b is 201, so calc is printed like 200 and 201. But when we come back to the place where we called the function from, तो हम जब ये इसको p and q को प्रिंट कराते हैं तो p की वैल्यू 100 एंड q की वैल्यू 200 ही मिलेगी आपको. इसका मतलब ये है कि whatever change has taken place within the calc function will not affect the value of the actual argument. ये p and q की वैल्यूज को a and b जिसमें कि ये चेंज हो चुके हैं will not affect anyhow. So P and Q will be the constant here, and we can see it through the program. Daf say calc A comma B. This is here, and when we say A is equal to A into 2 and B is equal to B plus 2, and if we print it like print calc is A comma B, and ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया. ये फंक्शन हमारा तैयार हो गया and it doesn't give any output because we have not made a call to this function. Now in this thing, in next cell, we are taking the value of p as 100, q as 200, and after that if you call p comma q, so this is the call, and after that when you print the value of p and the value of q, and when I execute this cell, what I am going to do here, I am just taking one more print, blank print, so that p and q will be little distinguished or separated. Now run them. So here
shift and enter, and it will give you what? So see here, a is equal to a into 2. So what is the value of a? Through this function call, a gets the value of p. So p is 100, so a gets 100. Q is 200, b gets 200. So when you apply this formula, a is equal to a into 2, so a is 100, 100 into 2 is 200, and b is already 200, 200 plus 2, 202. So it will print calc is 200 and 202. And when you come back, यहाँ पर ये जो प्रिंट मैंने दिया है इसकी वजह से एक ब्लैंक लाइन आएगी, एंड नेक्स्ट लाइन में आपका जो आउटपुट आएगा, P is 100 and Q is 200. So here you'll observe that A and B, these are the arguments which are immutable arguments. यानी कोई भी वैल्यूज आप भेज दीजिए, जो आर्गुमेंट्स यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर हैं, वो उनकी वैल्यू को बेशक आप विद इन द फंक्शन चेंज कर लें, उसको यूज कर लें, बट बैक होम you'll get the same values, means those values will not be changed. तो यहाँ पर जो सीन था वो ये था कि I wanted to show you immutability of the arguments. So A and B are the immutable arguments here. See another example like this. Again जो arguments हैं immutable हैं. First and last ये string identifiers arguments हैं, but what we are doing here, we are adding or concatenating first and last, and the concatenated value will be stored in first, and when you print the value of first, तो आपको ये पता चलेगा कि जो तो वैल्यूज हैं फर्स्ट एंड लास्ट की वो कॉन्केटेनेट हो चुकी हैं, एंड कॉन्केटेनेशन के बाद जब आपने प्रिंट कराया तो कॉन्केटेनेटेड वैल्यू प्रिंट हुई एज फर्स्ट. एंड बैक होम मतलब इन द मेन कोड, the value of f is me and the value of l is virk. So when you print it, so definitely it will give f and l, and if me and virk first, then यहाँ से हमने फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन नेम इज fl name. ये फंक्शन कॉल हुआ, और फंक्शन कॉल होने के बाद क्या होता है कि फंक्शन के अंदर जो me है वो तो जाता है फर्स्ट में, एंड virk जाता है लास्ट में, और यहाँ पर होता है कॉन्केटेनेशन. और कॉन्केटेनेशन के बाद जब आप फर्स्ट प्रिंट करते हो तो फर्स्ट की जो वैल्यू होती है क्या होती है, फर्स्ट एंड लास्ट का कॉन्केटेनेशन. तो फर्स्ट की वैल्यू है me and last की वैल्यू है virk. So me virk is the output here. You see here. But back home, when you print the value of f, so value of f is me, so it is unchanged here, me, and same when I apply again a function call with l and f, यानी यहाँ पर पैरामीटर्स की हमने जो पोजीशन है वो स्वैप कर दी, यानी जहाँ f जाना था वहां मैं l भेज रहा हूँ. नाउ first will receive the value of l, that is virk, and last will receive the value of f, that is me. And when you see, when these arguments get the values first as virk and last as me, so after concatenation क्या बनेगा, virk and me का concatenation, and when you say print first, so first की जो value होगी virk me, so here this is the output. And back home when you print l, so what is the value of l, the value of l is virk. So again you must have observed that the parameters or the arguments are immutable. जो कुछ भी आप वैल्यूज भेजते हैं फंक्शन के अंदर, वो वैल्यूज फंक्शन के अंदर तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन बैक होम उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता. तो ये जो आर्गुमेंट्स हैं वो आपके immutable आर्गुमेंट्स रहेंगे, एंड दैट इज व्हाई द टाइटल ऑफ दिस इज immutable पैरामीटर स्ट्रिंग इन फंक्शन. तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग्स दी हैं और वो चेंज नहीं होती हैं, लेकिन हाँ फंक्शन के अंदर आप जो करना चाहें वो करिए. तो फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज अवेलेबल हैं कुछ भी कर सकते हैं,
फर्स्ट की वैल्यू अगर एम ही अवेलेबल है और लास्ट की वैल्यू अगर विर्क अवेलेबल है, तो फर्स्ट पहले आपने फर्स्ट लिया, फर्स्ट का मतलब एम ही प्लस लास्ट यानी विर्क, तो एम ई प्लस विर्क मिलकर के बन जाते हैं एम ई विर्क, सो इट गिव्स आउटपुट लाइक दिस। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। डेफ fl name first comma last first plus equals to last print comma first। So here the function is over and उसके बाद हमने किया है f comma l is equal to me comma with, so here the value of f is me and value of l is with, and when I call the function fl name with f comma l, then see output me with। ओके, तो इस तरीके से आप, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस वन स्पेस लास्ट, एंड देन मैं इसको रन करता हूँ और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ एंड एमी विद। इस तरीके से मेरा आउटपुट, यानी इसके हिसाब से नहीं, जो फंक्शन मैंने यूज किया है फर्स्ट की जो वैल्यू है वो एमी विर्क है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए एफ में भी और एल में भी, बट व्हेन यू प्रिंट एफ and it will not print AMI work, it will print AMI only. Similarly, if you say print L, it will also print WIG। अगर इसको, इनकी वैल्यूज को मैं स्वाइप करूं, यानी जब मैं इसको कॉल करूं एफ एल नेम, या मैं पहले हमने एफ एंड एल दोनों एफ पैरामीटर्स लिए थे, अब मैंने अगर इसको स्वाइप किया है उसके बाद भी फंक्शन के अंदर तो आपका डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन बैक होम डेटा आपका चेंज नहीं होगा। तो विर्क एमी, एल इज विर्क एंड एफ इज एमी, तो यहाँ जाकर के फर्स्ट की जो वैल्यू है वो विर्क एमी हो गई है, लेकिन फर्स्ट की वैल्यू चेंज हो गई है, विर्क एमी हुई है, बट व्हेन यू प्रिंट व्हेन यू प्रिंट एफ, विल प्रिंट एमी ओनली। तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में ये आ जाना चाहिए कि व्हेन यू पास एनी वैल्यू टू द यूजर डिफाइंड फंक्शंस, तो उसके अंदर जो आर्गुमेंट्स होते हैं, उन आर्गुमेंट्स की वैल्यूज जो हैं इम्यूटेबल रहती हैं हमेशा, क्योंकि अभी मैंने आपको ये नहीं बताया है कि म्यूटेबल कब होंगे। ओके, तो यानी आप कोई भी स्ट्रिंग पास करें या कोई भी इंटीजर पास करें, वो वैल्यूज फंक्शन के अंदर जाकर के आपको एक्शन बता सकते हैं, लेकिन उनकी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं, यानी एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं, उनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ओके, अगेन
द फंक्शन इज सेम। यहां पर हमने क्या किया है कि अब हमने टपल पास किया है, टपल पास किया है। अब टपल पास करने से क्या कुछ चेंज होगा? आप मुझे जवाब दीजिए। इफ वी पास टपल्स टू द यूजर डिफाइंड फंक्शन, will there be any change back home? Any from Sir, here? Yes, yes, bolo. sir, it will be immutable. No, it's not. Be immutable because tuple is always immutable structure. Got it? बात Yes, समझ में? sir. ठीक है, देखो कैसे। Here, Amy and Sam. This is a tuple and it is being stored in identifier A and identifier B में Tom and Ram. When you print A and B, so you are printing both the tuples. So both the tuples, when you print, it gives this output. But when you pass these tuples to the user defined function all in one, तब देखते हैं क्या होता है। Sec A means Amy Sam. Sec B means Tom Ram. When you say sec plus equals to sec B, यानी here this a concatenation, यानी sec की जो वैल्यू है और sec A की वैल्यू sec B की वैल्यू दोनों कॉन्केटिनेट होंगी और वो sec A में आ जाएंगी और से sec A की जो वैल्यूज बनेंगी वो बोलेंगी Amy, Sam, Tom, Ram. See here, एंड जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो आउटपुट आपका क्या आता है? अगेन टपल। Excuse me, sir. ये Sir, during defining, you didn't give any space. Like it's written SECA plus is equals to SECB, sir. But during the output, we are able to see the space वेयर, between the two tuples. Sir, Emmy, Sam, and the space. तो वो अभी हमें प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, Ji, sir. ठीक है ना? तो स्पेस नहीं आएगा। Yes, sir, cause we have not defined it, so यस, cause. डेफिनेटली डेफिनेटली। Yes, sir. एंड उसके बाद जब आपने प्रिंट ए किया, तो प्रिंट ए इज व्हाट? एमी सैम। प्रिंट ए की जो Yes, वैल्यू sir. तो ये आ गया। जब आपने इनको स्वैप कर दिया, दोनों टपल्स को स्वैप कर दिया, उसके बाद जो आउटपुट आया, बिकॉज जो सेकंड टपल है वो मैंने फर्स्ट में ले ली, यानी सेक ए में आपकी सेकंड टपल आ गई और सेक बी में आपकी फर्स्ट टपल आ गई। तो व्हेन यू से सेक ए प्लस इक्वल्स टू सेक बी, तो आपकी जो बी टपल है वो पहले प्रिंट हो जाएगी, पहले आएगी, और जो ए टपल है उससे कॉन्केटिनेट हो जाएगी। सो उसका जो आउटपुट होगा टॉम रैम, यानी पहले बी वाली और उसके बाद ए वाली। सो व्हेन यू प्रिंट बी, विल प्रिंट द सेम। So as such, there is no difference here because this is immutable Yes, uh, sir. collection of parameters, Hmm. right? So did I? Sorry, do I do the program? No, sir, it's fine. We'll try मतलब it. you understand ना? Yes, sir. Understand. चलो नेक्स्ट चलते हैं। सो अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्या चेंज है? अब in place of tuples, in place of integers, in List is there. place of strings, we have assumed list as parameters. And list is mutable in nature. List is mutable in nature. So when you use this, तो क्या होगा कि लिस्ट के अंदर जो कुछ भी आपने चेंज करना है वो आपको देखने को यहाँ मिलेगा। So see here, again the same example, but over here we have taken one is list and other is tuple. Let us see what happens. A इसके अंदर लिस्ट है और B इसके अंदर tuple है। तो what, because हमने क्या किया यहाँ पर, जो टपल वाला जो आर्गुमेंट है सेक ए, इसके अंदर आपकी लिस्ट जा रही है और लिस्ट के अंदर हमने दूसरी लिस्ट को कॉन्केटिनेट कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि जो फर्स्ट आर्गुमेंट है इट इज मॉडिफाइड within the function, so it will print the concatenated value. But since this is the list,
this parameter is the list, and that is why when you print A, it will print the concatenated value and it becomes the new list. So here sec A is the reference argument of A parameter, actual parameter. So करके देख लेते हैं इसको, Excuse me, sir. Yes, sir. करके देखते हैं. Sir, why we are getting this concatenated list at end when we are printing A only? I didn't got this. चलो करके देखते हैं ना, मैं समझा दूंगा वहीं पर. All in one. First and sec B, and here sec A plus equals to sec B, print. यहाँ पर मैंने केवल sec A प्रिंट किया. ओके, और इसको मैंने रन कर दिया, शिफ्ट एंड प्रेस एंटर. उसके बाद मैंने एक लिस्ट लिया, लिस्ट का नाम A एंड B लिया हुआ. A is equal to list Amy Sam. Sam. This is a list and दूसरी लिस्ट है आपकी, not the list but as a tuple. Ram and Ram. Okay. So अगर हम इसको अलग अलग भी प्रिंट करते हैं, जैसे प्रिंट A, print B, and after that I am calling all in one, और उसमें दे दिया हमने A, B. अब यहाँ पर इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा, A जो है आपकी लिस्ट है और B आपकी टपल है. एंड उसके बाद मैंने प्रिंट किया, देखना है मुझे A के अंदर क्या चेंज आया है और B के अंदर क्या चेंज आया है. राइट अमिका? Yes, sir. फंक्शन मेरा यही तो था, और उसके बाद मैं इसको Yes, sir. अब रन करा रहा हूँ. ये आपका पहली लिस्ट ये प्रिंट हो गई, दूसरी टपल ये प्रिंट हो गई. उसके बाद मैंने ऑल इन वन कॉल किया, तो यहाँ पर जो है ए का जो करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट था वो उसने लिस्ट को एक्सेप्ट किया, और बी का जो करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट है उसने टपल को एक्सेप्ट किया. और यहाँ पर हमने क्या किया, sec a plus equals to sec b. So sec a is the list and sec b is the tuple. So when you say print sec a, so it prints what? Amy, Sam, Tom and Ram. ओके, और आगे देखते हैं. जब मैंने कहा प्रिंट A, इसके बाद प्रिंट A, तो प्रिंट A का मतलब आ गया ये, ठीक है. और जब मैंने कहा प्रिंट B, प्रिंट B का मतलब हो गया टॉम. अगर आप ये कहें कि मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा करें, Yes, sir. तब देखते हैं क्या होता है. प्लस तो जो आपका सेकंड आर्गुमेंट है वो तो टपल है. अब यहां पर मैं प्रिंट कर रहा हूं B, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर ये तो चलाया, तो वहां पर,
ऑटोमेटिकली एक एरर आ रहा है कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कैन ओनली कॉन्केटिनेट टपल नॉट लिस्ट टू टपल। तो टपल के साथ में कॉन्केटिनेशन टपल का हो सकता है लेकिन लिस्ट का नहीं हो सकता, और उस केस में आपको एरर भी मिल गई और हमारा जो आउटपुट है वो भी जो है साफ साफ बोल गया कि यहाँ पर ये फंक्शन एरर दे गया। ये जो चीज है इस चीज के अंदर टपल के अंदर हम लिस्ट ऐड नहीं कर पाए बिकॉज टपल कैन नॉट बी चेंज्ड। Yes, sir. ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पर आपको ये एरर देखने को मिलती है। और अगर यही चीज अगर आप प्रिंट करना चाहें तो बेशक प्रिंट कर सकते हैं, दोनों टपल ले लेते हैं हम। लेकिन इसका तरीका डिफरेंट होगा। इसका जो तरीका है यहाँ पर मैंने लिखा है, कॉल कर दीजिए, दोनों ही टपल है तो टपल टपल का ऐड हो गया। लेकिन आप बैक होम देखिए, ना तो ए चेंज हुआ ना बी चेंज हुआ। Yes, sir. ठीक है ना, और दूसरी आप टपल को टपल से कॉन्केटिनेट कर सकते हैं पर टपल से लिस्ट को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। लिस्ट से टपल को कॉन्केटिनेट किया जा सकता है बट टपल से लिस्ट को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते बिकॉज आफ्टर कॉन्केटिनेशन टपल को चेंज होना है, इसलिए यहां पर उसने आपको एरर दे दिया। लेकिन कॉन्केटिनेशन के बाद अगर दोनों ही मेरे पैरामीटर्स टपल्स हैं तो कॉन्केटिनेशन तो हो गया लेकिन बैक होम उनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो पाए। ये इसका आउटपुट है। एमी एंड सेम एज इट इज, टॉम एंड रैम एज इट इज, ये चेंज नहीं हुए, जबकि जब हमने इसको लिस्ट किया था तब ये हो गया था काम। होप दिस इज क्लियर। सब पर अगर हम ये Yes. फंक्शन के बाहर इसको ट्राई करें कि लिस्ट में टपल कॉन्केटिनेट करें तो सब वर्क नहीं होता। सॉरी फिर से बोलो। सर जब फंक्शन के बाहर किसी लिस्ट में हम ट्यूपल को कॉन्केटिनेट करने की कोशिश करते हैं तो तो हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन अब ये बात उस वेरिएबल के अंदर तो नहीं आएगी बिकॉज जो पैरामीटर है मेरा वो जो मैंने पास किया है, अगर आप प्रिंट करेंगे लिस्ट एंड टपल तो प्रिंट हो जाएगा लेकिन आपकी जो लिस्ट है वो मॉडिफाई तो नहीं हो पाएगी ना। सॉरी, लिस्ट तो मॉडिफाई हो जाएगी बट टपल तो मॉडिफाई नहीं हो पाएगी। अगर टपल में लिस्ट ऐड करते हैं और रिजल्ट आप टपल में डालते हैं तो टपल विल नॉट बी मॉडिफाइड, but if you add tuple to the list and storing the result into the list then list will be modified। चाहे आप बाहर करो चाहे अंदर करो, लिस्ट के अंदर कुछ भी चेंज करेंगे तो लिस्ट मतलब अगर रिजल्ट लिस्ट में स्टोर कराएंगे तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा लिस्ट इज मॉडिफाइड। बट वही काम अगर टपल के साथ करेंगे तो टपल कैन नॉट बी मॉडिफाइड, बट अगर टपल ही टपल है वहां कॉन्केटेंट होकर के प्रिंट तो हो जाएंगे लेकिन टपल चेंज नहीं हो पाएगा। टपल के अंदर की जो वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं हो पाएंगे। यानी एक टपल एक लिस्ट आप प्लस करके प्रिंट करा दीजिए, इट वर्क्स, लेकिन जब स्टोर करने की बात आएगी जो आर्गुमेंट है अगर वो टपल होगा उसके अंदर नहीं जा पाएगी लिस्ट। ओके, और जो भी आप जैसे आपका अगर समझ में नहीं आता है तो आप खुद करके देखिएगा और मुझसे शेयर करिए तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर ये शेयर कर रहे हो शेयर? ओके, कर वेट।
error can only concatenate list. कैन ओनली स्टेटमेंट लिस्ट नॉट टपल। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि लिस्ट के अंदर तो कॉम्बिनेशन नहीं, सॉरी, लिस्ट के अंदर टपल जा सकती है लेकिन टपल के अंदर लिस्ट नहीं आ सकती। सो इसमें सिंपल कॉन्केटिनेशन नहीं हो रहा, वैल्यू तो बड़ी। आपने लिया है यहाँ पर एक तो लिस्ट लिया, यस सर। उसके बाद सर ट्यूपल को कॉन्केटिनेट करने की कोशिश की है। यस तो आप ये नोटिस करिएगा जो हमने अभी फंक्शन आपको बताया है उसमें जो स्टोर कर रहा है, जो पहला जो हमारा अटेम्प्ट था उसमें लिस्ट उसको स्टोर कर रही थी, इसलिए उसने ले लिया क्योंकि आप लिस्ट एंड टपल दोनों को मिलाकर के लिस्ट में डाल रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, लिस्ट एंड टपल दोनों को आप डायरेक्ट ले रहे हो या स्टोर कहीं नहीं हो रहा। तो जब उसने प्रिंट कराया तो प्रिंट कराते वक्त उसने ये आपको एरर दे दिया कि कैन ओनली कॉन्केटिनेट लिस्ट नॉट टपल टू द लिस्ट। एक सीधी बात आ गई, लिस्ट के अंदर तो जा सकता है लेकिन ये सोचें कि टपल एंड लिस्ट मिलकर के टपल के अंदर चली जाए, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और वही मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर जो आर्गुमेंट है वो स्टोर कर रहा है, जो लिस्ट आर्गुमेंट है वो स्टोर कर पा रहा है लेकिन टपल आर्गुमेंट उसको स्टोर नहीं कर पाएगा। राइट, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, आगे चलते हैं। Now the next is again, क्या है ये, क्या है ये मुझे बताएगा। इसमें जो जो फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट है वो क्या है। यस, देखिए बोल जाया करिए, अगर गलत भी बोल जाएंगे तो कोई फांसी थोड़ी चढ़ा देगा या कोई हंसेगा थोड़ी। जितना आपकी समझ में आया उतना आपने बोला कि आपको ये पता है P इज अ लिस्ट हियर। तो जब आप कैल्क P करोगे तो ऑब्वियस है कि आपकी लिस्ट ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पर मूव कर रही है, तो A विल रिसीव ए लिस्ट। तो A के अंदर आपके 100 एंड 200 आ गए। अब ये जो एलिमेंट है इसका इंडेक्स क्या होगा, 0। इसका इंडेक्स क्या होगा, 1। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पर, A0 is equal to A0 into 2, so A0 is 100 and 100 multiplied by 2 is 200 and the value of index 0 is modified, तो 0 पे हो जाएगा 200 और A1 पे क्या हो जाएगा 200 plus 1 that is 201। तो A की जो वैल्यू है 200 and 201 एज आउटपुट आपको देखने को मिलेगी। ये तो प्रिंट हुआ यहाँ पर, ये तो आउटपुट इसका है 200 201 बिकॉज ये फंक्शन के अंदर ही है। लेकिन बैक होम आप क्या देखते हैं, फंक्शन कॉल करने के बाद व्हाट इज द न्यू स्टेटस ऑफ P, न्यू स्टेटस ऑफ P इज 200 and 201। तो जो एक्चुअल स्टेटस था वो 100 and 200 था और न्यू स्टेटस हो गया आपका 200 and 201 बिकॉज यहाँ पर म्यूटेबल आपका पैरामीटर है, लिस्ट इज म्यूटेबल, तो लिस्ट चेंज हो गई, इसकी वैल्यूज भी चेंज हो गई। तो जब बैक होम आप लिस्ट को यूज करना चाहेंगे तो जो मॉडिफाइड लिस्ट है वो आप यूज कर पाएंगे। होप दिस इज क्लियर, इसमें तो कुछ भी नहीं है। Yes, sir. ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट, अगेन यहाँ पर इम्यूटेबिलिटी आ गई, दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पर क्या करना है, ये आपकी Yes, sir. यहाँ पर आपकी टपल आ गई, लेकिन क्योंकि जो म्यूटेबिलिटी होगी वो तो लिस्ट के अंदर ही हो सकती है, तो यहाँ पर एक स्टेप हमने इंसर्ट कर दिया कि जो टपल है उस टपल को हमने
म्यूटेबल कर लिया और जो टपल को लिस्ट टाइप कास्ट से ए में जो वैल्यू आई है वो आपकी हो जाएगी लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर जो आपने डेटा चेंज करना है कर लीजिए, लेकिन सिंस ए इज टपल, बिकॉज आपने यहाँ से भेजी टपल है, तो वापस हो करके वो लिस्ट तो नहीं हो जाएगी, इसलिए उसकी जो वैल्यूज हैं वो 100 एंड 200 ही रहेंगी। Okay, sir. राइट, तो इस तरीके से हम फंक्शंस के अंदर अगर कुछ भी चेंज चाहते हैं, कुछ भी चेंज चाहते हैं तो वो लिस्ट के अंदर होगा, तो आसानी से हो जाएगा। लिस्ट के साथ साथ डिक्शनरी भी हम यूज कर सकते हैं, पर अभी टाइम नहीं है। अभी केवल इतना ही करने के बाद अगला जो स्टेप होगा उसमें हम डिक्शनरी एज पैरामीटर लेंगे और देखते हैं कि डिक्शनरी का क्या हाल होता है, और उसके साथ ही साथ उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको दूंगा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर कुछ लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, आप मुझे बता दें कौन कौन ज्वाइन किए हैं। अंकित इज हियर, Yes, sir. अमृता इज हियर, नो, उर्मित नो, निकिता नो, दीक्षा, दीक्षा इज हियर, नो, स्वधि यस, मुस्कान नो, ऋषभ नो, ईशा नो, चूलू नो, साइराज, सोनिया, तन्मय, प्रथम, अंजलि एंड सिद्धार्थ नो, अमिका, Yes, sir, I'm there. अविरल नो, रिंकू नो, कर नो, एंड अमन। Sir, only 10 students are there. चलिए, दैट्स ऑल Sir, फॉर you द डे। haven't taken my name. क्या नाम है आपका बेटा? Sir, Khushi. लिस्ट में है कि नहीं है, तो ये भी तो देख लो ना। होनी तो चाहिए। खुशी आई थिंक मैं भूल गया लगाना, बिकॉज लिस्ट मैंने ये है नहीं, खुशी है तो सही। खुशी से है, Yes, sir. ठीक है। सॉरी, हेलो, Yes, sir. Sir, Diksha Chauhan. दीक्षा, दीक्षा चौहान, Uh, दीक्षा चौहान, Diksha. स्पेलिंग बोलो, डी ई डी डबल ई के एस एच ए, Yes, sir. DEEKSHA. के एस एच ए, दीक्षा चौहान, दीक्षा का, दीक्षा काफी है। यहाँ पर मैंने एक नाम बोला तो था, कोई ऊपर रह गया है, sir, अंकित। she was Diksha Sharma. ओके, ये दीक्षा शर्मा है, तो मैं इसको ही दीक्षा कर देता हूँ ना। Yes, sir. दीक्षा शर्मा तो शायद आती नहीं है। Sir, नहीं आती sir. हाँ, तो वो मेरे ख्याल से वो बायोलॉजी में चली गई है, इसको मैं हटा देता हूँ। फाइन, चलते हैं। अब आगे जो है डिक्शनरी में काम करेंगे तो अगले पीरियड में। Sir, are we done with that libraries? विच लाइब्रेरीज? Sir, libraries topic.